السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ گریٹر حیدرآباد میں بلدی انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ 1 دسمبر کو رائے دہی اور 4 دسمبر کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی میڈیا کانفرنس۔ عصری سہولتوں پر مشتمل کمانڈ کنٹرول سنٹر 600 کروڑ کی لاگت سے 2 ماہ میں پائے تکمیل کر لیا جائے گا۔ کمانڈ کنٹرول سنٹر کے معائنے کے بعد KTR کا خطاب۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عوامی فلاح اور خدمات کا سلسلہ جاری۔ میگا میڈیکل کیمپ کا صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے افتتاح انجام دیا۔ نیز شادی مبارک چیکس کی سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں کی گئی تقسیم۔ TRA 100 سے زائد بلدی ڈویژنز میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پر قبضہ جمائے گی۔ ریاستی وزیر سرینواس یادو کا دعویٰ۔ اوقافی اراضیات پر ناجائز قبضوں کی اطلاع پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے پہاڑی شریف، مامڑ پلی اور بلہ گڑے کی وقف اراضیات کا کیا معائنہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن پارتھا سارتھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے GHMC انتخابات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 1 دسمبر کو رائے دہی ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 دسمبر کو کرتے ہوئے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کیے جائیں گے، جبکہ انتخابات کے انعقاد کے دوران بہار اور دوباک ضمنی انتخابات میں لاگو کیے گئے کورونا کے رہنمانہ خطوط پر عمل کیا جائے گا۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ 18 تا 20 نومبر تک پرچے نامزدگیاں داخل کی جا سکتی ہیں، جبکہ 21 نومبر کو پرچے نامزدگیوں کی جانچ کی جائے گی اور 22 نومبر کو پرچے نامزدگیاں واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر ہے، جبکہ رائے دہی صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی، جس کے لیے 150 ڈویژن کے لیے 2700 مراکز قائم کیے جائیں گے۔ 150 بلدی ڈویژنز میں 75 ڈویژنز خواتین کے لیے مختص ہیں، جبکہ میئر کا عہدہ خاتون کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات کے دوران ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کی برقراری اور انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఉంది. అట్లాగే GHMC యాక్ట్ సెక్షన్ 7 కింద కూడా టర్ము పూర్తయ్యే లోపల 3 మాసాల లోపల టర్ము పూర్తయ్యే లోపు 3 మాసాల లోపల ఎలక్షన్స్ నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. అందుకోసం మేము ఈ టైం ఫ్రేమ్ని, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న మ్యాండేట్ని, GHMC చట్టంలో ఉన్న మ్యాండేట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఎలక్షన్ సంబంధించిన పనులు సన్నాహాలు ప్రారంభించామని మీకు అందరికీ తెలుసు. ప్రధానంగా ఈ ఎలక్షన్లో 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో డీలిమిటేషన్ ఆఫ్ వార్డ్స్, రెండవది రిజర్వేషన్ ఆఫ్ వార్డ్స్. ఈ 2 నిర్ణయాలు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధికి సంబంధించినవి, మున్సిపల్ GHMC యాక్ట్కి సంబంధించినవి. మీ అందరికీ తెలుసు డీలిమిటేషన్ ఆఫ్ వార్డ్స్ ఈ ఎలక్షన్కి లేదు. ఆల్రెడీ GHMC యాక్ట్కి అమెండ్మెంట్ గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చేసుకున్నాము. అట్లాగే రిజర్వేషన్ కూడా 2016 ఎలక్షన్లో ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఉండిందో రెండవసారి కూడా అదే రిజర్వేషన్ కంటిన్యూ అవుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సో మిగతా 2 స్టెప్స్ మా మీద బాధ్యతగా ఉన్నాయి. ఒకటేమో وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں چہارشنبے کے روز دوپہر 2 بجے پرگتی بھون پر ایک اجلاس منعقد ہوگا، جس میں ریاستی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی اور اراکین خان ساز کونسل شرکت کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں GHMC انتخابات کی حکمت عملی کو تیار کرنے اور 150 ڈویژنز پر پارٹی امیدواروں کو خطیت دینے کے علاوہ پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنانے کے سلسلے کے میں صدر TRS و وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کئی ایک ہدایتیں بھی جاری کریں گے۔
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में महकमे जीएचएमसी के हदूद में आने वाले पार्लिमानी हलकों के इंचार्ज का तखल्लुर अमल में लाते हुए उन्हें पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके के इंचार्ज मोहम्मद अली शब्बीर होंगे, जबकि सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के लिए भट्टी विक्रमार्का, मेदक पार्लिमानी हलके के लिए के कुमार चिवड़ला, पार्लिमानी हलके के लिए पूनम प्रभाकर, जबकि मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके के लिए जीवन रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। गांधी भवन में मस्कुरा इंचार्ज का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें 18 नवंबर को उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी करने और 21 नवंबर को इंतखाबी मंशूर जारी करने का फैसला लिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुशीराबाद के बल्दी डिवीज़न भोलकपुर में मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मेगा मेडिकल कैंप से तकरीबन 4000 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफादा किया, जहाँ डॉक्टरों ने कैंप से रुजू होने वालों की तशखीस की और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन हाजी अजीज़ुल्लाह उस्मानी गौसुद्दीन तहा के अलावा अलहाज शरीफ हुसैन, मुकामी सदर इब्तदाई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों हुई बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में आवाम की सेहत आमा के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एक अकबर अवैसी मेगा हेल्थ मेडिकल कैंप अंजुमन गर्ल्स स्कूल भोलकपुर में मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका इफ्तिताह फरमाया। उम्मीद थी कि सिर्फ 4000 लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तादाद डबल से भी ज़्यादा आ गई। अभी भी लोग बेइंतहा बड़ी ख़तार में खड़े हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। असरा हॉस्पिटल के, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के पूरी टीमें रात दिन बड़ी जुस्तजू से इसको अंजाम दे रही हैं। आज जो मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ है, हमारी तवक्को से ज़्यादा ये कामयाब हुआ है। मैं भोलकपुर की आवाम की जानिब से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और सारे हिंदुस्तान के अजीम लीडर, प्यारे लीडर मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने सईदाबाद MRO दफ्तर में शादी मुबारक के 100 चेक्स की तकसीम की, जिसकी जुमला मालियत 1 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मौके पर MRO श्रीनिवास और मंडल ऑफिस का दीगर अमला भी मौजूद था। वाज़ेह रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है और आज के इस प्रोग्राम के मौके पर मजलिसी कारकुन अयूब शाद भी मौजूद थे। शादी मुबारक के चेकों की तकसीम आज सईदाबाद मंडल ऑफिस में शुरू की गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर कि जैसे जैसे चेक तैयार होते हैं फौरी उनकी तकसीम अमल में लाई जाए ताकि लोगों को सहूलत हो सके। चुनांचे आज MRO सईदाबाद के साथ सईदाबाद मंडल ऑफिस में तकरीबन लगभग 100 अफराद को शादी मुबारक के चेक दिए गए, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए की है। और यहाँ मजीद कल्याण रश्मि के शादी मुबारक की जगह आहिस्ता आहिस्ता तैयार होकर आ रहे और जैसे आ रहे उसकी तफसील करके हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। सदर साहब की हिदायत है कि बिला ताखिर इसको आवाम के हवाले करने के लिए कहा गया, उसी के मुताबिक तकसीम अमल में लाई जा रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। वज़ीर बल्दी नर्मदा KT रामाराव की क़यादत में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और अजय कुमार के अलावा DGP महेंद्र रेड्डी, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कमांड कंट्रोल सेंटर का तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के बाद वज़ीर बल्दी नर्मदा KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कमांड कंट्रोल सेंटर असली टेक्निकल सेंटर है, जो 600 करोड़ की लागत से 2 माह में पाए तकमील कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कमांड कंट्रोल डाटा सेंटर, इंटीग्रेटेड सेंटर और 10 लाख CCTV कैमरों से मरबूत किया जाएगा। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नर VC सजनार और दीगर भी मौजूद थे। అత్యంత సురక్షితమైన అత్యంత భద్రత పట్ల శాంతి పట్ల ఒక ప్రణాళిక ఒక విజన్తో భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బహుశా అంతర్జాతీయంగా కూడా
వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టదగ్గ సంఖ్యలో మాత్రమే ఉన్న ఈ అద్భుతమైన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని ఈరోజు అందరం కలిసి విజిట్ చేసి ఇక్కడ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. 2-3 నెలల్లోనే ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు భద్రత కల్పిస్తూ ఇక్కడ ఉండే కోటి పైచిలుకు ప్రజానికానికి ఒక స్పష్టమైన విశ్వాసాన్ని భరోసాని వారి మనసులో నింపే విధంగా అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీతో ఐకానిక్ టవర్ రూపంలో सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय की क़यादत में सिटी पार्टी ऑफिस वाक़ बरकतपुरे में GHMC इंतखाबात की हिकमत अमली का जायज़ा लेने और पार्टी उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण रामचंद्र रेड्डी और इंतखाबी मंशूर कमेटी के सदरनशीन विवेक वेंकट स्वामी ने हिस्सा लिया। इजलास से कबल साबिक़ खातून मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि GHMC इंतखाबात में TRS अपनी कारकर्दगी और शहर में किए जाने वाले तरक्याती कामों को लेकर इंतखाबात का सामना करेगी और 100 से ज़ायद डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर TRS का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में अपोजिशन जमातों BJP और कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि साबिक़ में भी इन दोनों पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज पहाड़ी शरीफ, मामड़पल्ली और बल्लागुड़ा दरगाह नूरी शाह के करीब का दौरा करते हुए वक्फ जायदादों और गैर मजाज किए गए कब्ज़ात का मुआयना किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ में वाक़ दरगाह के रैंप के जारी कामों का मुआयना किया। बादअज़ा उन्होंने मामड़पल्ली अलीगुड़ा में वाक़ 713 एकड़ अराज़ी का मुआयना करते हुए बताया कि मज़कूरा अराज़ी पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों को फौरी बर्खास्त करवाया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बल्लागुड़े में वाक़ दरगाह नूरी शाह के तहत वाक़ अराज़ी का भी मुआयना करते हुए दरगाह के करीब वाक़ गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करवाया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ की जायदादों पर किए जाने वाले नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने के लिए महकमे वक्फ बोर्ड हरकत में आ चुका है और किसी को भी गैर मजाज कब्ज़े करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिए हुए हैं जो बुजुर्ग हस्तियाँ भी हैं यहाँ पर, मगर जो कॉलेज स्कूल वगैरह जो चल रहा वो तो खैर चल रही है, उसको मेंटेन अच्छा करना है। मगर जो लैंड ग्राबर्स यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इसके लिए जो ना हम लोग सीरियस एक्शन लेंगे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन हम भी करा लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी इसके एरिया में जितना भी है नूरी शाह के, कोई भी अगर प्लॉटिंग कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको हम एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती। हम बोर्ड मीटिंग में भी इसको रख के कैसा करना है क्या है देखेंगे, और ये रजिस्ट्रियाँ तो कैंसिल होंगे। और हमारे सर्वेयर इंस्पेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन देके कल इसके ऊपर भी कल मीटिंग लेके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, कमिश्नर पुलिस को, DG साहब को भी देंगे और कलेक्टर को, RDO को, सबको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करके हम लोग हमारी चीज़ कैसा हासिल करना है इंशाल्लाह इसको सीरियस लेंगे। क्योंकि प्राइम लैंड है, सिटी में है, ऐसा प्लॉटिंग करके जो ना लैंड ग्राबर एंजॉयमेंट करे तो नहीं होता। वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, टेम्पररी खुश होना कोई भी प्लॉटिंग करके वो करके नहीं कर सकते ऐसा। और इसमें पुलिस को भी हम एक कंप्लेंट लिखेंगे, क्रिमिनल केस बुक करके ये लोगों को क्रिमिनल केस बुक होना है, लोगों को जेल को भी जाने का काम करेंगे पूरा। कोई भी लैंड माफिया रहे तो हम बख्शेंगे नहीं किसको भी। 23 एकड़ कुछ चिल्लर है इसके अंदर, आधे से ज़्यादा कब्जा दिख रही है इसमें। तो 35% तो कब्जा है इसके अंदर, वो हटा लेंगे अब इंशाल्लाह। सैयद नवाज अली साद आशुर खाना, इसके तहत 700 चिल्लर एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर पूरे इलीगल बाउंड्रियाँ बना लिए, मेन रोड से लेके पूरा एरिया जो है ना वफ़ है ये, और इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कराएंगे, पट्टे कैंसिल कराएंगे। हम गवर्नमेंट को भी हाई लेवल पे जो है ना मीटिंग लेके जो है ना गवर्नमेंट को, कलेक्टर को और DG साहब को, कमिश्नर को, सब जनों के साथ जो है ना एक मीटिंग करके हम लोग जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे हमारे अकबर अवैसी साहब की भी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना ये काम को सीरियस हमारे को जो है ना कब्जे हटाने का है। वफ़ लैंड रहती है, क़यामत तक वफ़ रहती वफ़ प्रॉपर्टी। क्योंकि ये लोग जो है ना कब्जे करके बना लेके पट्टे पानियाँ जो है ना डुप्लीकेट बनाने से नहीं होता, क्योंकि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी हम लोग इससे पहले भी दौरा करे थे,
आज भी दौरा करें, अभी हम पहाड़ी शरीफ जाके आए, वहाँ पर भी हम लोग रैम्प का वगैरह का देख के करके यहाँ पर कब्जे इंक्रोचमेंट है बोल के अकबर साहब भी ये करे, तो हम लोग उसके लिए आज इंस्पेक्शन रखे। सीओ साहब हम लोग पूरा डिपार्टमेंट हमारा टास्क फोर्स सर्वेयर वगैरह हम लोग सब लोग मिलके निकले, हमारे बोर्ड मेंबर वाइस साहब हम लोग सब मिलके निकले। इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जल्द से जल्द हम लोग जो है ना इसकी कार्रवाई क्या कर सकते हैं, कल ही मीटिंग रख के हम लोग इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। अभी कितने एकड़ है साहब ये? 700 एकड़ है, 718 एकड़ है और अभी तक सीनियर बीजेपी कायद इंदिरा सेन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी दोबारा ज़िमनी इंतखाबात की कामयाबी को दोहराएगी और शहर की आवाम टीआरएस और मजलिस को सबक सिखाते हुए इस मरतबा बीजेपी को कामयाबी से हमकनार करेगी और बीजेपी का ही मेयर और डिप्टी मेयर होगा। उन्होंने बैलेट पेपर्स के जरिए इंतखाबात के इनेकाद पर तनकीद करते हुए इसमें धांधलियों का अंदेशा जाहिर किया। जीएचएमसी हुदूद में इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन के जारी होते ही महकमे जीएचएमसी के दफ्तर में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है और साउथ जोनल ऑफिस वाक़े नरखी फूलबाग में साउथ जोनल कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन से हिदायत जारी होने के बाद इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी पैदा कर दी है, जबकि जीएचएमसी हुदूद के मुतालिका डिवीजन्स में फ़हरिस्त राय दहिंदगान और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल करते हुए साउथ जोनल कमिश्नर ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैरमक़दम है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में फिर इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 952 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1410 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,58,828 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,43,686 बताई गई है। आज सुबह 1,602 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 13,732 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 150 नए केसेस सामने आए। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जनगांव में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए 23 स्कीमात को रूब अमल ला रही है, जबकि दूसरी जानिब मरकज़ी हुकूमत किसानों की तरक्की और रियासत में तरक्याती प्रोग्रामों को रूब अमल लाने के लिए फ़ंड्स जारी करने के सिलसिले में टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। तेलंगाना के मेडचल में 30 साला नामालूम खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को भी मजदूर पेशा खातून का रेलवे स्टेशन के पास कत्ल हुआ था। मेडचल मंडल के दबीलपुरा ग्राम पंचायती हुदूद में महालक्ष्मी वेंचर में नामालूम खातून की नाश दस्तियाब हुई है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम के मुताबिक इस इलाके में गुज़िश्ता 3-4 महीनों से मुसलसिल जराइम की तादाद में इजाफा हो रहा है और शराब के नशे में अफराद यहाँ पर अड्डा बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ग्रेटर हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया। 1 दिसंबर को रायदही और 4 दिसंबर को नतायज जारी किए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। असली सहूलतों पर मुश्तमिल कमांड कंट्रोल सेंटर 600 करोड़ की लागत से 2 माह में पाए तकमील कर लिया जाएगा। कमांड कंट्रोल सेंटर के मुआयने के बाद KTR का खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी फलाह और खिदमात का सिलसिला जारी। मेगा मेडिकल कैंप का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। नेज़ शादी मुबारक चेक्स की सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों की गई तक़सीम।
TRS 100 से जायद बल्दी डिवीजन्स में कामयाबी हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर कब्जा जमाएगी, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का दावा। औकाफी अराजियात पर नाजायज कब्जों की इत्तला पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ, मामड़पल्ली और बल्लागुड़े की वक्फ अराजियात का किया मुआयना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।